Harinder Singh Tiloji. He is a BE Civil and has done his Masters in Soil Mechanics and Foundation Engineering. He has vast nature of experience in construction of buildings, roads infrastructure, bridges, airports, etc. Right now, he is giving his services as Superintending Engineer PWD BRR, Ludhiana. So can we please have a huge round of applause for Sir H.S. Tiloji. Can we please have you on the stage? Next, I would like to invite on the stage the living legend himself, Professor Jeet Kumar Gupta ji. Professor Jeet Kumar Gupta ji is the founder, director of College of Architecture, IET Bhaddal, Punjab. With an experience of over 48 years in urban planning and architectural education, he has in the past also served as the advisor, Town Planning of Punjab Urban Planning and Development Authority and National Vice President of Indian Institute of Architects. Professional experience spanning over 48 years in architecture, urban planning, architectural education, policy planning, policy legislation, academic qualification, graduation in architecture, bachelor in laws, masters in city. और मेरे को लगता है मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी, so एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए. So wonderful having you here, sir. He has also given his guest lectures in University of Switzerland, Kent State University, USA, Lawrence Tech University, Detroit, USA, Ohio State University in USA, Bowling Green State Universities, and presentations made in ACA 12 China, SAA, RCH Kathmandu and Bhutan, Indian Institute of Technology, Kharagpur, and many other universities. He's also the co-opted member, Working Group Planning Commission of India for evolving planning framework for the 9th 5-year plan, and he has authored more than 200 technical papers for international and national conferences and has many prestigious projects handled like Master Plan Chandigarh, Srinagar, Amritsar, Tarantaran, Kapurthala, Batala, Gurdaspur, and many more. So we are very delighted to have you amongst us, sir. So next I would like to invite on the stage Mr. Vikas Agarwal. So he is a certified GEO master, energy consultant and aura analyst. Born in a reputed business family, having an industrial background as one of the prominent textile processing houses of Ludhiana, he has had a keen interest in studying occult sciences. His fascination in scientific research on Vedic rituals and practices led him to get formally edified as an aura expert from Vedic Aura Sciences Research Institute, Hyderabad, founded by ex-nuclear scientist of India, Dr. Mannen Murthy. With his vast experience and practices of over 8 years into this field, Mr. Vikas Agarwal specializes in design consultation to architects, interior designers, town planners on diverse projects ranging from small houses, factories to community townships on the basis of scientific energy analysis of the project, paving way to progress in wealth creation. So, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए. We have the third panelist on the stage, Mr. Vikas Agarwal. Next, I would like to bring your attention to none other than architect Kanav Khosla. So the next panelist on the stage, we would like to invite architect Kanav Khosla from Avinash Khosla Associates, usually called as the airport man, as his firm has designed and executed over 9 airports across India, which is a huge achievement. So ek baar sir ke liye zordar taaliyan ho jaye. And the last and nonetheless, we would like to invite on the stage our moderator, architect Karan Arora. From Arcline Studios of Design, he has completed his BArch from LSAD Jalandhar, got chance to work with eminent firms in Ahmedabad, Chandigarh and Delhi. In 2014, he joined his father and formed the firm Arcline Studios of Design. During this time, they have had an opportunity to work on various projects of different scales and types, and now they are leading firms of architecture and design consultancy in Punjab and Rajasthan. The firm boasts of extensive experience in design and planning of projects of varied nature in Punjab, Haryana and Rajasthan region, and also he is serving as the National Vice President of Club NPC. So, एक बार सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए. So, we have the 5 panelists on the stage.
First of all, I would like to welcome you all here, and I've got chance to sit with the eminent personalities today. So, I am here for the topic architecture and construction, traditions and innovations. I am here in the panel कि मैं भी इन सब से कुछ सीख सकूं, तो I hope आप सब भी कुछ ना कुछ सीखेंगे इनके साथ. So we'll make it an informal conversations and we'll then go into the audience as well. So in our conversation of above topic, we seek to understand the evolution of architecture and construction from past traditions to modern technological advancements. Study the impact of various practices in relationships to environment, surroundings, sustainability, and cultural influences. So I'll start with my first question. I would like to ask Professor Jeet Kumar Gupta ji to start the conversation. I would like to ask, sir, how do you define tradition in respect to building techniques? Hello. Yes. Hello. Hello. I think construction industry is as old as the human living. The day we started on this, the first and foremost thing done by human beings is create a shelter for itself, you know. If you look at the history of architecture, the father of architecture, Victor Weiss, clearly said that a building must fulfill three functions. That's, it must be safe against all disasters. Number two, it must be able to fulfill the functions for which it has been constructed. And third, it must be beautiful to look at. Then came the concept of cost, quality, and this time, you know. So those three parameters earlier defined were supplemented by the cost, quality, and time. But then it was realized that buildings do not have only cost, quality, and time as the implication, but buildings consume resources, consume energy, and generate waste, you know. And accordingly, buildings are responsible for climate change, for all these rising carbon footprints, rising temperature, and whatever happened to the sustainability, this is the impact of the building. I think building have to be looked into these 9 aspects. The principles remain the same, but over a period of time, the typology of building has been changing, building has been evolving, devolving, and the construction industry is never static, never defined. Is the technology of construction, material, and our needs, you know. So you can see the buildings have gone tremendous change. So the principle have remained same, you know, but the footprints of the building have become larger, the height of building gone up, you know, and buildings are now being looked more towards looking at not only the individual or the people who are living therein, but also the climate, etc. But I think the focus earlier was in the buildings was, you know, sustainability. That is how, you know, how we could do with the passive design that we achieve the maximum comfort. But over a period of time, with the advent of technology, we are now graduating to active systems of, you know, managing the climate within and outside the building. So therefore, I think it's a back to basic. That is the concept and that is the context. So we have to, you know, what I am trying to communicate is building have to be looked differently, building have to be looked distinctly, because buildings are impacting the quality of life for the people who are living therein, and also the building is impacting the environment and ecology. I will mention here 80% of your life is
spent within the four wall of building. So the buildings remain very, very crucial, for determining your human psyche, health, hygiene, productivity, and the livability. On the other hand, if you look at this, building consume 1/6 of water, 1/4 of wood harvested, and also 1/3 of the total material extracted from the earth. I think sick building syndrome is also attributed to the way the buildings are being planned and designed. I would like to congratulate the NPC for bringing all professionals on the same platform to look at the building holistically, Building is not, architect is doing his job or engineer is doing his job, They have all to come on the same platform, create a body. Body is like, the most perfect creation is the human body. I think the aim shall be to whatever the building is created, it is the input of the 7 pillars which we have defined in NPC to come on the same platform and to create building to make this world sustainable. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, for your words. Very well said about the sustainability factor. So, I would like to ask architect Kanav Khosla the same question, that how do you define tradition in respect to building techniques? Evening, everyone. As far as the tradition goes, as an architect, when we started practicing, we were taught a certain way of how would you plan a building, how would you design a building, how would you build it. So things started in a very different tone at the time when we were learning and at the time we started practicing. Now over time, as the buildings have grown, as the category of buildings have grown that we have done, and the kind of projects that you see around, there are infrastructure projects, there are administrative projects, there are institutions, there are sports infrastructures that are coming up, there's road infrastructure that's coming up. So with all of these, it's not just about, traditionally what we used to see was there was a single person who was in charge and he used to come forward and say this is how a building is to be done, and that's how things were taken forward and built. Right now what we see is it's more of collaborations. It's a very different way of working. Nobody is a singular person who can practice and build what they want to. It's more of how people come together, and that's what has made a lot of difference to how traditions are seen as and how they're changing. It's not just about you wanted to do a structure which was, let's say, an institutional building or any technical structure, where you had a carpenter and a plumber and an electrician along with the contractor who would come together and say we have completed a structure. With all of these different technologies that are coming in now, you need IT people, you can need air conditioning, you need pressurizations, you need firefighting. So all of these things have added on to what originally was there. It's only come as an enhancement. And then add to it what you want to do as a better product with all the green technologies that come in and with all the things that you would add on to a structure to make it more comfortable, which basically, like Sir said, is you're adding all of this together and then again bringing it back to the roots, where you're looking at comfort of, ultimately the sole purpose is the comfort of the occupant, the comfort of the people who are living there. So that's a full circle that we have basically completed, and we are doing all of these technicalities and all of these things and bringing it back to the roots again. Thank you. Right, sir. So from the architects, I would like to move to engineer Harinder Singh Dhillon. Dhillon sir, your take on this? On the same question? Yes, sir. Tradition in the building techniques, how do you define? Tradition on the building techniques purely depends upon client requirement. Actually, what client want, expect. Next is the cost factor. The next, I think, is there are two aspects in the building. One is circulation area and other is utilitarian area. In old times, focus on such things. And third one is local area environment is very important in designing the buildings and selecting the materials. Nowadays, plenty of options are there, but main thing missing in the present scenario is what I think, airflow movement is missing in the modern infrastructure as far as building is concerned. When the airflow is proper, whosoever
reside or occupy the building, the family will be healthy. And this is one of the most important factor is required at this stage. Health nowadays in the modern buildings deteriorating because of missing fresh air. This is my opinion. I request all the youngsters focus on healthy living instead of putting the big glass, fixed glass, and all other factors, verandas, materials. We can increase the cost. Sometimes selecting the product is not the right. And this is purely the idea of and consultant who is involved. Moreover, for the wonderful buildings, why the buildings look smarter, that is more important. In my opinion, elevations nowadays are stunt architectures. We must think what is requirement as far as in over Punjab state climate is want. This is my independent opinion. Thank you. Rightly addressed to climate is very important. We have a very interesting personality today with us, Mr. Vikas Agarwal. He is expert in geosciences. So, sir, what is your take on the same? Thank you, Karan. Thank you. For me, I would start with what Professor Gupta ji quoted, back to the basics. Sir, definitely modern architecture has evolved. It has evolved to a greater extent where you are talking about green buildings, you are talking about sick building syndromes. But as a student of Vedic sciences, I have gone to study what is far beyond that. What we lost in our culture, what we lost in our tradition during these years, during this war. See, I am really amazed to see what a rich culture we belong to. हमारी साइंसेस जो बिल्डिंग आर्किटेक्चर के रिलेटेड थी उसमें इतनी एडवांसमेंट्स और इतनी डेप्थ में स्टडीज़ जो हमारे वेदास में लिखी गई है, इवन दैट इज़ नॉट अवेलेबल टू द नॉर्मल टुडे आर्किटेक्ट्स. अ सिंपल इनमें मैं सिंपल थिंग्स यू टॉक अबाउट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिलेक्शन ऑफ लैंड. टू स्टार्ट अ बिल्डिंग, हाउ टू सेलेक्ट अ लैंड. There were very simple techniques in the Rishi's culture. What they used to do, they dig a pot, खड्डा खोदते थे, उसमें पानी डालते थे, उस पानी में एक फ्लावर छोड़ देते थे. अगर उस फ्लावर को अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है, they would say कि इस लैंड पे आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लो. अगर उस फ्लावर की एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है तो वो कहते थे वो इस लैंड को छोड़ दो. There are different cultures across the world which had different things out of it. Greeks, what they used to do? Greeks used to graze the sheep on the land what they wanted to do construction. एक साल के लिए भेड़ बकरियां चराते थे वहाँ पे. एक साल के बाद वहाँ पे उन भेड़ बकरियों को वो काटते थे. काटने के बाद उनके ऑर्गन्स चेक किए जाते थे whether they are okay or not. अगर उन ऑर्गन्स में कोई एबनॉर्मेलिटी पाई जाती थी तो ग्रीक्स वो वाली लैंड को छोड़ देते थे कि उस जगह पे घर नहीं बनाना, उस जगह पे कंस्ट्रक्शन नहीं करनी. दिस इज व्हाट ट्रेडिशन हैज टॉट अस एंड दिस इज ट्रेडिशन फॉर मी व्हाट केम आउट फ्रॉम आवर वैदिक साइंसेस. थैंक यू. Vikas ji, I would like to further ask that after studying these kind of traditions, they helped you in your career or not? Sir, definitely. I have evolved a lot of concepts now. My expertise is aura sciences. Like I want to say that अभी वो एक साल वाला भेड़ बकरियों वाला टाइम तो है नहीं, तो अब कैसे हेल्प करता है आपको वो ट्रेडिशंस? अच्छा. How many of architects sitting here are aware of the golden ratio? आप जब अपने आर्किटेक्चरल प्लान्स बनाते हो, कितने आर्किटेक्ट्स यहाँ पे गोल्डन रेशियो पे प्लान्स बनाते हैं? Can I have a hand raise here? You'll hardly find any. Sir, the aura of a building वो डिटर्मिन करती है, जो प्रोफेसर गुप्ता जी ने कहा कि आपने उस बिल्डिंग से क्या लेना है. आपकी वेलबींग, आपकी हेल्थ, आपकी प्रॉस्पेरिटी, वो सब आपका बिल्डिंग का डिज़ाइन बताता है.
And do you know what is golden ratio? Golden ratio is 1:1.618. So while designing the first layout of the plinth area, if you design it on the golden ratio, it will automatically bring wealth and prosperity. This is what tradition brings in, practical applications. Right, sir. Right. So, Kanavji, like, do you also study tradition, these kind, and it helped you in your career or not? With lots of things, आप ट्रेडिशन में आप क्या किस तरह के एलिमेंट्स गिनेंगे? I went to on a trip to राजस्थान some time ago. क्या चीज़ें आप देख रहे हैं वहाँ पे? बड़े बड़े आर्चेस हैं, जालियाँ हैं, large passageways. Ultimately, how do you translate these? That एक जाली है, and that's what gives you slight shade and a light pattern, and it helps you cool down a space. लंबे लंबे passages हैं, which are basically like corridors, and they are wind tunnels and wind passages also. Your building has a good air circulation. Tradition में इस तरह की चीज़ें आपको एक in general, this is what we used to see. आज की तारीख में they kind of lost, and people say यार ये लंबा सा corridor किस लिए बना दिया? But there are projects that we have done where we've used these patterns again for bringing the actual life to the structure. We have planned a structure recently for an institution where the institutional block itself is a very large corridor. It's almost 300 feet long, but then it has a set of courtyards that has been built around. So concepts वही हैं, चीज़ें वही हैं. कहने को right now we are saying it's a green structure, it's a 4-star green rated building because we have added courtyards to it. ना कि यहाँ से पकड़ो, वहाँ से पकड़ो, घुमा फिरा के हम वहीं पे आ रहे हैं. So those concepts are definitely there, definitely alive. We are doing an Islamic structure where we are proposing large jalis. Stone की बड़ी बड़ी जालियाँ हैं. The sizes are almost like 10 feet by 20 feet, 10 feet by 20, 30 feet. We have done a very large mural, which is again a jali pattern in front of the airport, which is almost 60 feet by 20 feet high. Again, the purpose was to shade the glass. और उस ये सारी चीज़ें करके हमारे जो एयर कंडीशनिंग लोड्स थे अंदर, they've gone down by almost 15 to 20% just with these patterns. So अब इसको आप ट्रेडिशन कह लीजिए, इसको मॉडर्न कह लीजिए, इसको रीशफलिंग कह लीजिए. So these things are there and they definitely work. And it has a lot of impact on the way we build, the way we design, and the way we think about what we are going to output. Makes a lot of difference to these things. Thank you. Yes, sir. Gupta ji, please. In fact, विकास जी की बात सुन के मुझे I think we have to introspect कि जो लैंड का कॉन्टेक्स्ट है, साइट का कॉन्टेक्स्ट है बिल्डिंग में, it has relevance, you know, for the reason जितनी बिल्डिंग आएंगी they will come on the land, but land as a subject has never been made to study by any architect, by any engineer, by any town planner, you know. तो ultimately problem जो विकास जी ने बताई, कोई लैंड सूटेबल है या नहीं है, तो इसके लिए मेरे ख्याल में जैसे हमने अभी डिज़ास्टर मैपिंग के लिए एटलस बनाई है, तो मेरे ख्याल में अगर वो शहर में अगर एनपीसी इनिशिएटिव लेती है कि अगर शहर के एरिया की ये लैंड की मैपिंग हो जाए, कोई लैंड विच इज़ सूटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, आई थिंक दैट विल बी ए ग्रेट जॉब. क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो प्लानर्स ने एक लैंड एक्वायर हो गई, अब वो कौन लैंड एक्वायर करता है? We all know, you know, how the land is acquired in the government, you know, they don't need study, they need floodability देखते हैं, accessibility देखते हैं, मास्टर प्लान में क्या लिखा है, मास्टर प्लान भी कैसे बनते हैं, that's a different story. But I think the genesis of the entire development shall have to be revolving around the land, understanding land, suitability land. And अभी मैं आपको ये बताऊंगा, most of the projects they are lost for the reason that they were not located properly. I can clearly say, you can go in the history, you know, अगर अकबर अपना वो आगरा से परे फतेहपुर सीकरी को कैपिटल बनाने के बाद फेल हो गया, for the simple reason that was not the appropriate site. जब मोहम्मद तुगलक ने तुगलकाबाद में शिफ्ट किया, then he realized it failed, you know.
एंड अल्टीमेटली चंडीगढ़ का जो सक्सेस का रीज़न यही है कि दैट द साइट सिलेक्टेड बाय इंडियंस वर परफेक्ट, यू नो, because it was under the shadow of a nature, surrounded by nature, and that I think gave a different aura. But nevertheless, one thing I would suggest, you know, that अगर विकास जी ये कर सकें और NPC कर सकती है, कोई स्टडी करके मैपिंग कर दें कि लैंड विच इज़ सूटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, लैंड सूटेबल नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, दैट विल हेल्प इन, यू नो, प्रॉपर रैशनल प्लानिंग एंड साइटिंग ऑफ दिस. और देखिए, बिल्डिंग का और साइट का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है. अगर साइट ठीक नहीं है तो आप जितनी मर्ज़ी बढ़िया बिल्डिंग बना लें, वो प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको एक टाउन प्लानर वेस्ट में प्लॉट काट के देता है तो नेचुरली आर्किटेक्ट इज स्टक अप, यू नो. सो ना टाउन प्लानर को कभी पढ़ाया जाता है कि ओरिएंटेशन क्या है, ना उसको ये पढ़ाया जाता है कि ये क्लाइमेट के साथ कैसे बात करनी है. वो तो अपनी बर्फ़ियाँ काटने में लगा रहता है और बर्फ़ी काट के छोड़ देता है. बट आई थिंक द पॉइंट इज़ वेरी वेल, यू नो, एंड लाइक NPC एज ए फोरम, बिकॉज यू हैव ऑल एक्सपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट्स, यू नो, जियो scientists, he is there, you know, and then builder other there, surely you can contribute. अगर एक टेस्ट केस लेके यू कैन लुक एट कि ये जो लैंड थी अगर कोई अच्छी बनी है तो उसमें अगर मैपिंग करके अगर यू कैन शो these do's and don'ts, you know, that will help a lot in urban development and everything. Thank you. Here I will add to my opinion. अजीत सर ने बहुत अच्छा पॉइंट लिया चंडीगढ़ का. चंडीगढ़ क्यों खूबसूरत है, विकास का जो पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ लैंड. और मैं समझता हूँ इसके साथ एक और पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है जो ली कार्बोज ने ब्रेन में रखा वाइल डिज़ाइनिंग दी चंडीगढ़. और ली कार्ब का कॉन्सेप्ट क्या था, हाइड्रोलॉजी को उसने डिस्टर्ब नहीं किया. जो कंटूर चंडीगढ़ के नेचुरल थे वही मेंटेन है. इसका बेस्ट कंपोनेंट वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, एक हाइड्रोलिक्स होती है, सब्जेक्ट इंजीनियरिंग का है, शायद आर्किटेक्ट्स भी पढ़ते हों. जब रेन आती है तो उसका सरफेस रन ऑफ होता है. मिनिमम टाइम टू ट्रैवल जो कम्युलेटेड वाटर होता है वो मिनिमम टाइम में अपनी ड्रेन में चले जाए. और पंजाब में अदर दैन चंडीगढ़ क्या हो रहा है, लैंड बाय करते हैं, फ्लैट कर देते हैं. दिस इज़ द वर्स्ट पार्ट. जब ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है. और दूसरी बात पॉइंट डिस्कस हुआ मास्टर प्लान का. हमारे इंडिया में डेवलपमेंट पहले ही होती है, दिस इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और मास्टर प्लान बाद में बनता है. जो डेवलप कंट्रीज़ हैं मास्टर प्लान पहले बनता है, उसमें आने वाले मोर देन 50 ईयर्स की कंसिडरेशन होती है. और पहले सब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है और डेंसली पॉपुलेटेड सिटी ना बने, और जो मूवमेंट होती है लोगों की उसका ध्यान रखा जाता है. और सम टाइम हमारी स्टेट में कहते हैं ना कि इनसिक्योरिटी हैसन्स क्रिएटिविटी. जो लुधियाना का पहला ये जिसको हम सदर्न बाईपास कहते हैं, सबसे जो टफ काम होता है, कोई भी रोड डेवलप करनी होती है तो लैंड एक्विजिशन का इश्यू आ जाता है. दिस वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट. ये आई एम लिंक्ड विद सिंस इंसेप्शन. एट दैट टाइम आई वाज एसटीओ. इज लॉन्ग बैक स्टोरी ऑफ 13 ईयर्स बैक. हमने ये कनाल्स के सर्वे किए थे जो इरिगेशन की लैंड है. इरिगेशन के ये इंस्पेक्शन रूट होते थे कि इंस्पेक्शन करनी है, कनाल की फेलियर ना हो, ब्रीच ऑफ कनाल ना हो. फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट ने परमिशन दी कि आप रोड बना सकते हैं. तो इसकी ऐसे होंद आई सदर्न बाईपास की. तो उसके बाद हमारी स्टेट में जितने भी कनाल के साथ साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं उसमें लैंड एक्विजिशन कॉस्ट ज़ीरो है. दिस इज़ द मतलब ब्रेन थॉट. पहले ओरिजिनली क्या होता है, पहले अगर रोड बनी हो अलॉन्ग द बैंक ऑफ कनाल उसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज एनवायरनमेंट क्लियरेंस ही नहीं मिलती. यू कैन अपग्रेड द इंफ्रास्ट्रक्चर बट यू कॉन्ट बिल्ड ए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ ट्री कटिंग्स. बिग चैलेंज. बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो नज़र नहीं आती आम पब्लिक को, उसके बारे में सोचना चाहिए. जितने भी घर हैं अगर हर कोई एक एक प्लांट लगा ले अपने घर के बाहर और एनवायरनमेंट चेंज होता है. प्लांट लगाने से इम्पोर्टेंट है प्लांट को पालना बच्चों जैसे.
जिस घर में मैं रहता हूँ इट्स 42 ईयर ओल्ड, और मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा दरख्त है, और उस दरख्त जब भी नेबरहुड में कोई कार आती है ना तो ड्राइवर वहाँ खड़ा हो जाता है, और लोग प्लांट इस करके नहीं लगाते कि एलिवेशन नज़र नहीं आता। और एज ए कंसल्टेंट, एज ए प्लानर, एज ए प्रोफेशनल, एज एन ऑफिसर्स, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं सोचता हूँ, कोई भी काम करो बिगिन विद एंड इन माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एंड प्रोडक्ट क्या आएगा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और कोई भी काम करना है वो माइंडसेट के ऊपर बेस्ड है। इवन सिलेक्टिंग एनी पीस ऑफ लैंड इज़ अगेन बेस्ड ऑन योर माइंडसेट, और हर चीज़ माइंडसेट के ऊपर ही चलती है। और अगर आपका माइंडसेट का विज़न बेटर है तो आप बेटर रिजल्ट दे सकते हो सोसाइटी को। एंड फॉर एनी प्रोजेक्ट, फॉर एनी प्लानिंग, फॉर एनी इंसेप्शन, इन 3 M's आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिज़ाइनिंग, फॉर प्लानिंग, फॉर एग्जीक्यूशन। एंड फर्स्ट M इज़ माइंडसेट, किस माइंडसेट से आपने वो आइडिया लेकर आए हो। एंड सेकंड M इज़ मोटिवेशन, उस चीज़ को बनाने के लिए आपका मोटिवेशन फैक्टर क्या है। एंड थर्ड वन इज़ मेथड, कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हो फॉर द बेस्ट रिजल्ट इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, इन ऑल प्रोफेशन ऑफ लाइफ। माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओवर टू नेक्स्ट। थैंक यू सर। सर जैसे आपने अभी बताया इस नॉर्म्स के बारे में, एंड ऑल्सो अबाउट द एयर क्वालिटी एंड ऑल द, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। सो व्हाट डू यू फील दैट हाउ इनोवेशंस हैव चेंज्ड आवर, ऐसे है, आर दे फॉर बेटर और फॉर वर्स? देखो ऐसे है, हम लोगों को चेंज करना चाहते हैं, खुद चेंज नहीं होना चाहते। खुद चेंज होकर देखो और आपका नज़रिया बदल जाएगा। राइट। विकास जी, सो इन योर फील्ड ट्रेडिशंस आपने यूज़ किए, दैट इज वो एक आपका एक कह लीजिए बेसिक फाउंडेशन है, वहाँ से हम लेके चलते हैं। Now with the new innovations, so how they have changed your practice, and are they for better or for worse? Sir, I have been blessed to be trained by a retired nuclear scientist of India. So if I am talking about traditions, और उसके साथ साथ मॉडर्न इनोवेशंस क्या हुई हैं उसके बारे में भी हमें जितनी टेक्निकल डिटेल्स के साथ सिखाया गया, अगर मैं कुछ पॉइंट्स एक बार शेयर करने का मुझे अगर टाइम दें तो मैं करूं। जहाँ तक हमने लैंड की बात की थी अभी, डॉक्टर मन्ना मूर्ति हैज़ क्वांटिफाइड द रिसर्च अबाउट जियोपैथिक स्ट्रेस, इंफ्रारेड रेडिएशंस एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ये ऐसी रेडिएशंस हैं जो हमारे अर्थ के मैग्नेटिक कोर से ऊपर आ रही हैं, और वो हर जगह हैं, उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वेब है। जहाँ जहाँ पर भी आप अपना घर बना रहे हैं, उन रेडिएशंस के इम्पैक्ट से इनफैक्ट 95 to 100% ऑफ द केसेस ऑफ कैंसर, सर दिस इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, 95 to 100% केसेस ऑफ कैंसर आज की डेट में इन रेडिएशंस के इम्पैक्ट से हो रहा है, ना कि आपके लाइफस्टाइल एंड फूड के कारण। वो जो मैंने फ्लावर की एग्जांपल दी थी, दैट वाज हमारा ट्रेडिशनल तरीका था ये देखने के लिए कि अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है फ्लावर, तो इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे आर कमिंग इन एन एंटी क्लॉकवाइज फैशन, इसलिए वो कहते थे कि वहाँ पे घर मत बनाओ। आजकल पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास उतनी स्पेस नहीं है, हम घर और जगह तो नहीं ना छोड़ सकते। दूसरी चीज़ जो आपने बात की, ओरिएंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिएंटेशन में आई विल टॉक अबाउट समथिंग साइंटिफिक ऑन दिस। जो अर्थ का मैग्नेटिक कोर है उसका एक्सेस कहाँ से है? नॉर्थ टू साउथ। जो हमारा मैग्नेटिक फ्लो है नॉर्थ से साउथ है। जब हम बिल्डिंग्स या टाउनशिप्स प्लान कर रहे हैं, वहाँ पे हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं सर। मतलब मैं आज बहुत सारी मिथ्स को तोड़ना चाहूँगा। वी टॉक अबाउट चंडीगढ़। चंडीगढ़ का जो टोटल टाउनशिप प्लान है वो 45 डिग्री टिल्ट पे बना हुआ है। Can you imagine the amount of resistance that natural flow of magnetic energies is happening from north to south? अगर आप नॉर्थ से साउथ अलाइन करके अगर बिल्डिंग्स को और टाउनशिप्स को और अपने कॉलोनीज़ को अगर प्लान करेंगे, तो एक नेचुरल फ्लो में आपको विदाउट रेजिस्टेंस आपकी बिल्डिंग्स वो रिजल्ट देंगी, वो प्लॉट्स वो रिजल्ट्स देंगे।
वी हैव सीन, इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूं सर। तिरुपति बालाजी टेम्पल, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए जो प्लान्स बनते थे जो हमारे वैदिक साइंसेस में, वहाँ पे कहा जाता था कि 0 डिग्री अलाइन करके आप टेम्पल्स को बनाया जाए। उसके लिए आज हम अगर मैग्नेटिक कंपासेस भी यूज़ करते हैं, इवन दैट इज़ नॉट इफेक्टिव। एक स्टिक की कुछ डिमेंशन जिसको हम शंकु कहते हैं, उस स्टिक को 2 दिन लगते हैं सन की शेडो के साथ अलाइन करके हम एक्यूरेसी में ट्रू नॉर्थ एडजस्ट कर सकते हैं। एंड दैट वाज वेरी मच नोन टू आवर आर्किटेक्ट्स इन द पास्ट। सिमिलरली अगर आज आपकी कॉलोनीज डेवलप कर रहे हो ट्रू नॉर्थ के ऊपर, तो वो अपना रिजल्ट फार बेटर देगी जो आप विदिशा में जो 45 या 35 डिग्रीज में लेके जाते हो। तिरुपति बालाजी टेम्पल पूरा स्ट्रक्चर अलाइन करके बनाया था, उन्होंने सिर्फ एक थोड़ा सा उसमें फेरबदल की, 4.75 डिग्रीज का टिल्ट दिया पूरे प्लान को। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए 0 डिग्री अलाइनमेंट इज गुड, लेकिन अगर आपने मटेरियल क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन के लिए कोई भी प्लानिंग करनी है तो आपको वो 0 डिग्री से थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा। वाई हैज चंडीगढ़ नॉट डेवलप्ड एज ए इंडस्ट्रियल हब or a trade hub? Because it is not aligned on 0 degree angles. Thank you, sir. मैं थोड़ा विकास जी को क्लियर करता हूँ। ये जब चंडीगढ़ बना था तो उसमें यही था कि ये कैपिटल सिटी होगा, इट विल नॉट बी इंडस्ट्रियल सिटी, इट विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी। तो मतलब जब तक ये आर्किटेक्ट आए तब तक साइट वगैरह, ये चंडीगढ़ की साइट है, इंडियन ने सिलेक्ट किया है, कोई फॉरेनर नहीं था। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। मिस्टर पीएल वर्मा थे, द फादर ऑफ आई वुड से द चंडीगढ़, जिसने वो साइट को सिलेक्ट किया। लेकिन आप एक अगर देखेंगे कि उन्होंने कुछ चीज़ें प्रोवाइड की या नहीं की, इसका ये था कि उन्होंने चंडीगढ़ का, अभी बहुत लोगों को पता, इवन जो प्रेजेंट जनरेशन है उनको भी नहीं पता, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी थी। दैट प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ नॉट ट्रेसेबल। उसमें उन्होंने बिल्कुल जैसे अब मकान बनता है, पीडब्ल्यूडी ने बिल्कुल वो सारी क्रिस्टलाइज कर दी कि ये मकान बनेंगे, इस कैटेगरी के बनेंगे, इतने बनेंगे। और उसके बाद क्या था कि उसमें इंडस्ट्री नहीं आएगी, क्लियर था, क्योंकि चंडीगढ़ वो कहते थे इंडस्ट्री पल्यूट करती है। तो पहले अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ने कहा कुछ इंडस्ट्री आएगी, तो फिर उन्होंने कहा हम वही इंडस्ट्री लाएंगे जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है और नॉन पोल्यूटिंग है। तो अगर आप देखेंगे कभी चंडीगढ़ में ट्रिब्यून के बाद इंडस्ट्रियल एरिया आता है, हालांकि वो डायरेक्शन गलत है, लेकिन चूँकि देयर वाज नो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री दैट कुड बी लोकेटेड देयर, तो उन्होंने उसको इंडस्ट्रियल एरिया और रेजिडेंशियल एरिया को 500 फुट की ग्रीन बेल्ट से बांट दिया ताकि पोल्यूशन ना हो। हालांकि पोल्यूशन नहीं थी, और 500 फुट के अंदर उन्होंने उसके अंदर फ्रूट ट्री लगाए कि ये जो फ्रूट निकलेगा इसको इंडस्ट्री प्रोसेस करके चंडीगढ़ के अंदर लगा देगी। चंडीगढ़ बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, मतलब सक्सेस फेलियर हैं। तो अगर कभी आप देखेंगे कि ये चंडीगढ़ में लेक नेचुरल लेक नहीं है, आर्टिफिशियल लेक है। और चंडीगढ़ एक प्लान नहीं है, 2 प्लान हैं। इसमें पहले एल्बर्ट मायर था जिसने प्लान बनाया। अगर एल्बर्ट मायर का प्लान एक्सिक्यूट हो जाता तो चंडीगढ़ में कोई लेक ना होती, क्योंकि वो एल्बर्ट मायर ने कहा था कि मेरा कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो है वो सुखना चौक के बीच में होगा, उसके बीच में वाटर को इंटीग्रेट कर देंगे। मैं तो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा था कि मैं सुखना चौक को इंटीग्रेट करूँगा एज पार्ट ऑफ दी डिज़ाइनिंग ऑफ द कैपिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब सेक्रेटेरिएट इधर होगा, असेंबली इधर होगी, बीच में पानी चलेगा, लोग ब्रिज में चलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था जो कि फाइनल था। लेकिन जब वो मैथ्यू नोविस्की की डेथ हो गई तो ये कर्बूजियर आ गए, तो उन्होंने पहला काम किया, उसको परे हटाया और उसकी जगह उन्होंने लेक लगा दी। तो चंडीगढ़ की सिटी की हिस्ट्री होती हैं, बट देयर आर डिफरेंट थिंग्स विच हैव गॉन देयर एंड दिस इज देयर। पर प्रॉब्लम ये निकलती है कि आर्किटेक्ट को कितनी क्लाइमेट की समझ है।
जब वो कर्बूजियर आए, उन्होंने कभी इंडिया देखा ही नहीं था। वो कहते हैं बड़ी अजीब बात है कि अगर हम क्लाइमेट देखते हैं, यहाँ क्लाइमेट का कोई रिवाज ही नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट बनती है 6 महीने के बाद। हम जिसमें हैं वी आर बेसिकली ए कंपोजिट क्लाइमेट, कि जिसमें वो कहता है हर 2 महीने बाद क्लाइमेट चेंज होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, गुलाबी गर्मी होती है, गुलाबी सर्दी होती है, बारिश आ जाती है। वो कहता है किसके लिए प्लान करें, तो अल्टीमेटली उन्होंने सन और विंड के लिए प्लान किया। और ये जो चंडीगढ़ की आर्किटेक्चर है बेसिकली, लेट्स बी वेरी क्लियर, वो कहीं सोच के नहीं आए थे। उनके पास प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी नंबर 1 क्लाइमेट को समझना, सन की मूवमेंट को समझना। तीसरा, इंडिया के पास पैसे नहीं थे, और उन्होंने कहा था पैसे नहीं हैं तो फिर भी बिल्डिंग बढ़िया बनेगी, तो इसके लिए फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, मटेरियल यूज़ किया। और इस वक्त क्योंकि ये जो वुड थी ये 7 टाइम मोर एक्सपेंसिव थी ब्रिक से, और जो आपकी ग्लास था 11 टाइम मोर एक्सपेंसिव था, तो फिर उन्होंने क्या किया, ओपनिंग को बहुत कम कर दिया, एंड दैट गिव बर्थ टू द आर्किटेक्चर ऑफ चंडीगढ़। बट आई थिंक देयर आर lot of factors which have gone into making and unmaking of the city, some positive, some negative. And I think the point he is raising, that I think that needs to be experimented and applied to the detailed study of Chandigarh. But Chandigarh is now basically, कोई सोच नहीं सकता था, क्योंकि चंडीगढ़ का कोई पूरा प्लान नहीं है। आज मैं बता दूं, कोई मास्टर प्लान नहीं है चंडीगढ़ का। दिस इज सिटी बिल्ट विदाउट ए मास्टर प्लान। अब झगड़ा था 5 लाख का शहर है, तो करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा 5 लाख तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो इकॉनमी नहीं है, सरकार बैठी है, सरकार में आप कितने आदमी करेंगे? 6,000 10,000 आदमी लगा लेंगे, कहाँ से आएगा आदमी? तो उन्होंने कहा पहली बात हम करते हैं कि 1.5 लाख का करेंगे, जब दूसरी बात आएगी, जब कभी हो जाएगा तो फिर हम बाद में करेंगे। तो चंडीगढ़ का कोई भी प्लान नहीं है 30 सेक्टर से बाद। लेकिन देखिए प्लानर क्या सोचता है, आर्किटेक्ट क्या सोचता है, और हिस्ट्री क्या है। चंडीगढ़ 40 साल के अंदर 50 में लॉन्च हुआ, 91 के सेंसस में चंडीगढ़ की 5 लाख पॉपुलेशन थी। सो दिस इज़ हाउ द सिटी ग्रो। क्योंकि सिटी को मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, सिटीज़ आर नॉट डिक्टेटेड बाई प्लानर, आर्किटेक्ट और प्रोफेशनल, दे आर डिक्टेटेड बाई द डिसीजन taken by the people who live therein. But human beings remain very complex, they cannot be defined. तो city बस हम ये कर सकते हैं, city को किस रास्ते में plan ले सकें। I think that should be the effort and that should be the approach what we should think. Thank you. Thank you, sir. Thank you. I think we have to have a different session for the Chandigarh itself. One day or another. So, Kanav ji, I would like to ask, so what do you feel is your USP in this datations and innovation subject? See, it's not exactly a USP, it's basically a inherent quality that comes to your design when you start working. Right now, what you see, talk about tradition, talk about innovation, howsoever we look at it. Normally, what we see around is there's more stress on चीज़ अच्छी दिखनी चाहिए, सुंदर लगे. When stress is on, let's make it functional first. Let's make it practical. So that is a very big factor that plays a role, be it a very small structure, be it a very large structure. चाहे आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं, चाहे आप सर्विसेज की बात कर रहे हैं, चाहे उसमें जो आप एस्थेटिक्स लाने वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली इट हैज़ टू बी मेंटेन्ड. बट एंड ऑफ द डे यू कम बैक टू ओनली वन पॉइंट कि आपका जो यूज़र है वो कंफर्टेबल रहे, चाहे वो मेंटेनेंस की तरफ से कंफर्टेबल रहे या रहने के हिसाब से कंफर्टेबल रहे. So we try the buildings be practical and they should be very, very usable and so forth. Functional. Functional, sir. Yes. So now I would like to move to the audience if they want to ask any questions. Sir. Thank you. I am not an engineer. Just for introduction, Vikas is my son.
आई एम ए सोशल वर्क करता हूँ थोड़ा बहुत। मेरा सिर्फ ट्रेडिशन और उनका मेन मकसद था कि सर ने जैसे कहा कि वी ह्यूमन डिटीरियोरेट द एनवायरनमेंट, और उसका सबसे बड़ा कारण मैं ये कहता हूँ, ठीक है डिटीरियोरेट कर रहे हैं, काफ़ी कुछ डिटीरियोरेट हो चुका है। आप सभी इंजीनियर बैठे हैं, कोई भी न्यू कंस्ट्रक्शन करते हैं तो लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए में चलता है। एक आज पंजाब की प्रॉब्लम है ग्राउंड वाटर की, मैक्सिमम कॉस्ट 25,000 to 50,000, और जब तक कोई भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है, कंप्लीट होने के बाद कोई ध्यान नहीं देता। यदि आप इंजीनियर लोग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिल्डिंग की, मैं कहता हूँ नींव रखने से पहले यदि उस स्ट्रक्चर का मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोग्राम पहले बना के शुरू करें तो काफ़ी हेल्प होगी एनवायरनमेंट को बचाने में और फ्यूचर को बचाने में। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Anyone else who want to ask anything? Anyone from the audience? Okay, so I would like to move to the concluding question. Vikas ji, how to achieve balance in the both? सर बैलेंस तभी आएगा जब हम अपने ट्रेडिशंस को मॉडर्न इनोवेशंस के साथ कंबाइन करेंगे। मैं थोड़े से लाइव एग्जांपल्स कोट करना चाहूँगा। यहाँ पे कितने स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं? कैन आई हैव अ रेज ऑफ हैंड्स? जो स्ट्रक्चर देखते हैं आप लोग, कभी भी आप अपनी साइट विजिट्स पे जाते हैं, समटाइम्स इफ़ यू सी देयर आर सम क्रैक्स इन द लेंटर और बीम, तो वहाँ पे आप आउटराइटली क्या कह देंगे, स्ट्रक्चरल इंजीनियर का फॉल्ट है, उसने सीमेंट गलत डाला है। आज मैं आपको एक थोड़ा सा एक नया पर्सपेक्टिव देता हूँ उसके लिए। आप उस क्रैक के नीचे फ्लोरिंग को एक बार ज़रूर देखो। अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे जहाँ पे आपका क्रैक या डिटीरियोरेशन आपकी लेंटर पे है या बीम में है, अगर एग्जैक्टली उसी के नीचे फ्लोर के ऊपर भी अगर आपको कोई डिटीरियोरेशन या कोई क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, तो दैट इज़ 100% इंडिकेशन कि वो वाला पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के इम्पैक्ट में है। कैन यू इमेजिन कि वो रेडिएशंस एक कंक्रीट स्ट्रक्चर को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तोड़ देती हैं, और आपके बॉडी सेल टिश्यूज़ अगर उन रेडिएशंस के इम्पैक्ट पे आ रहे हैं तो वो आपको कितना इम्पैक्ट दे रहे हैं। दिस इज़ फॉर योर ऑब्जर्वेशन। एंड एज फार एज ट्रेडिशन से मैं एक बहुत यूनिक आपको चीज़ बताता हूँ। हमारी वैदिक साइंसेस में इतनी माइन्यूट और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं। आप आज आई वर्क ऑन 3 levels: टेल्यूरिक, ग्लोबल एंड कॉस्मिक। टेल्यूरिक इज अर्थ एनर्जीज, ग्लोबल इज आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर प्लानिंग, कॉस्मिक इज योर एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट, जो बाकी बाहर का इम्पैक्ट क्या आता है। यू जस्ट गिव मी द पेरीमीटर ऑफ योर प्लिंथ एरिया। आप लेंथ ब्रेड दे दीजिए मुझे, पेरीमीटर दे दीजिए। उसके हमारे पास वैदिक साइंसेस में 9-10 ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनको हम अयादी कैलकुलेशंस कहते हैं सर। उन पेरीमीटर से ही सिर्फ ये बताया जा सकता है कि आपकी ये बिल्डिंग कितनी देर अपना रिजल्ट देगी, उसकी क्या लाइफ है। उस बिल्डिंग से में रहने वाले लोगों को व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, वो कितनी कमाई करेंगे, कितना उनका खर्चा होगा, साल में या उस हफ्ते के किस दिन में वो बिल्डिंग एक्टिवेट होती है। ये सब हमारी वैदिक साइंसेस में अयादी कैलकुलेशंस दी गई हैं सर। और आर्किटेक्ट्स को मैं वही कह रहा हूँ कि ये सब नॉलेज इतनी डाइल्यूट हो चुकी है कि हमारे करिकुलम्स में होनी चाहिए थी, जो अभी तक कहीं तो अभी है ही नहीं। थैंक यू। यहाँ मैं यहाँ एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ। विकास जी ने क्वेश्चन राइज किया क्रैक्स। बिल्डिंग में 2 प्रोफेशनल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वन इज़ एन आर्किटेक्ट एंड अदर वन इज़ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वन इज़ बिल्डिंग बिल्ट बाय एनी मेथड एंड अदर वन इज़ बिल्डिंग बाय methodology given by the structural designers.
99.99% architects or owner of the building never ever demand methodology from the structural engineer. This is the main reason. एक बेसिक एग्जांपल क्रैक के ऊपर मैं सब्जेक्ट को टच करता हूँ. जो ब्रिक वॉल होती हैं, जो स्लैब होती है, उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए. बेरिंग प्लस्टर एक कंपोनेंट है, वो गैप ही हो गया. और अनस्किल्ड वर्कर्स डूइंग द स्किल्ड जॉब्स, हु इज़ एट फॉल्ट? क्लाइंट इज़ द मेन फॉल्ट. क्लाइंट का मेन फॉल्ट होता है. जब कॉस्ट की बात आती है ना, कॉन्ट्रैक्ट जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो एक पढ़े लिखे बंदे और एक अनपढ़ बंदे के साथ कंपैरिजन हो जाता है. जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर डिज़ाइनर्स विद मेथोडोलॉजी ऑफ कंस्ट्रक्शन देते हैं, उसमें क्रैक का कोई इशू नहीं होता. एंड मैनी सच एस्पेक्ट्स आर देयर. और जो विकास जी ने एक और टॉपिक टच किया था, वंडरफुल कैंसर, मैंने भी टच किया था हेल्दी लिविंग. जीरो ओरिएंटेशन के ऊपर इन्होंने टच किया. आई एग्री. एंड देयर आर मैनी मोर कंपोनेंट टू अवॉइड सच लाइफस्टाइल डिसीजेस. कैंसर इज़ वन ऑफ द लाइफस्टाइल डिसीजेस. जब जब आप नेचुरल एयर में कांटेक्ट में रहेंगे, तब तब आपकी लाइफ हेल्दी होएगी. While designing and building, one aspect is the generation of free radical. I think very few know about this. और आर्किटेक्ट्स को जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल के ऊपर पढ़ाना चाहिए इंस्टीट्यूट को. मैं प्रोफेसर अजीत सिंह को रिक्वेस्ट करता हूँ, इस टॉपिक को भी 4-5 दिन के लेक्चर में ऐड करो. हम सुनते हैं कि प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन हो गया, किडनी फेल हो गई, लंग्स फेल हो गए, हॉल श्रिंक हो गए. व्हाट इज़ द रीज़न? ये रीज़न वाइल डिज़ाइनिंग के बिल्डिंग का फॉल्ट है. जैसे जैसे ये एयर कांटेक्ट रहेगी मैक्सिमम टाइम फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, वैसे वैसे ये ऑक्सीडेशन गैप हो जाएगी. थैंक यू. Sir, with due respect, I would like to add something to this. As architects, do you know there is a nerve structure of your design? कि आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं उसका एक प्रॉपर नर्व स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारी ह्यूमन नर्व स्ट्रक्चर है. उसकी प्रॉपर थिकनेस ऑफ एवरी नर्व वो तक हम डिफाइन कर सकते हैं उसमें, कि किस पॉइंट पे कौन सी नर्व कितनी मोटी है, कितनी पतली है. और आप अपने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में कौन से कॉलम्स और पिलर्स के साथ कौन सी नर्व को पंक्चर कर रहे हो, उसकी भी नॉलेज नहीं है. जिस आपके प्लान में आप किस नर्व को पंक्चर करोगे, उस घर में रहने वाले उन लोगों को उस ऑर्गन को रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आएंगे. मैं ऐड करना चाहूँगा. एक्चुअली अगर आप इफ़ यू लुक एट द टोटल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिल्ट एनवायरनमेंट, अभी भी 80% जो बिल्डिंग डिज़ाइन हो रही हैं कोएक्स कर रहे हैं, जिनका कोई भी आर्किटेक्चर से लेना देना नहीं है. दैट इज़ द मेजर क्राइसिस, यू नो. और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? ये हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं और अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, क्योंकि इन्होंने बाईलाज में कॉम्पिटेंसी डिफ़ाइन कर दी, कौन आदमी क्या कर सकता है. अगर आदमी जिसने कभी एजुकेशन नहीं ली, हाउ टू डिज़ाइन ए बिल्डिंग एंड व्हाट गोज़ इनटू डिज़ाइनिंग ऑफ ए बिल्डिंग, आई थिंक उसका पहला ही जो पार्ट है, उसमें क्या गलती आएगी वो तो ऑब्वियस है. You know, unless the man is very, very competent and very, very experienced. So first part I would say is, I think let's rationalize. Let, you know, ये आपका प्लेटफॉर्म है, तो इसके अंदर आर्किटेक्ट डिज़ाइन करेगा, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर will be there to take care of the material, technology, etc. And then, you know, MEP हैं, आपके दूसरे component हैं, builders आ जाएंगे, structure आएगा, material आएगा, they will all be on the same platform. लेकिन अगर आप बिल्डिंग इंडस्ट्री को देखें, लेट मी ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू, बिल्डिंग इंडस्ट्री रेलेवेंट थी, रेलेवेंट है और रेलेवेंट रहेगी. अगर इंडिया ने 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है तो बिना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के नहीं बन सकती. लेट्स बी वेरी क्लियर. और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, ये 2-धारी तलवार है.
यू नो इट कैन डू गुड, इट कैन डू बैड, यू नो। अगर ये गलत हाथों के अंदर चली जाती है, you know, if the construction is not done like it has been said with climate, nature, with the resources efficiency, so ultimately what we are creating is creating a suicide for us. In fact, अगर आप देखेंगे ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन जो हुई है उसकी सबसे कैजुअलिटी क्या है? ये लोकलाइजेशन। हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी जो विकास जी ने बताई, हमारी जो नॉलेज था, हमारा जो एक्सपीरियंस था, जिस तरीके से हम बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, वो टोटली ख़त्म हो गया इन द लाइट ऑफ दैट। ये आपकी आईटी इंडस्ट्री ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। व्हाट आईटी इंडस्ट्री डज इज आपको ग्लास में बंद कर देती है। आप अभी देखेंगे, अभी 10-15 साल के बाद जो लोग क्लाइमेट ये आईटी में काम कर रहे हैं, दे आर बिकमिंग मेंटली सिक पीपल, यू नो, because they are not exposed to the nature and they are in artificial air, you know, and that's what, you know, एक तरफ तो आप पानी हवा बंद कर दी और दूसरी बात उसको एयर कंडीशनिंग में रख रहे हैं। यू आर गिविंग हिम ए, यू नो, ए नॉट ए नेचुरल क्लाइमेट बट एन आर्टिफिशियल क्लाइमेट। और आदमी को जिस भी आई क्लाइमेट में डालेंगे दैट विल डू ए, यू नो, उसी तरीके से ढल जाएगा। और इसीलिए जो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम की मैंने बात की, जिसके कारण 1/3 आदमी जो अस्पताल में जाते हैं वो बीमार बिल्डिंग में रहते हैं। और दूसरी जो स्टडी है हाई हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, और ये दुनिया में प्रूव हो गया है कि हॉस्पिटल आर किलिंग मोर पीपल दैन व्हाट दे आर, यू नो, क्योरिंग। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हॉस्पिटल आर किलिंग मोर पीपल दैन क्योरिंग। और उसका एक ही कारण है, जिस बीमारी के लिए आप ठीक हो जाते हैं वो तो ठीक कर देते हैं और 9 और बीमारियां इन्फेक्शन के कारण लग जाती हैं। बट यू नो, आई थिंक अगर हॉस्पिटल ग्रीन है, सस्टेनेबल है, नेचर के साथ बनेंगे तो उससे क्या होगा? आदमी बीमार कम होंगे, आदमी जल्दी ठीक हो जाएंगे और हॉस्पिटल पर प्रेशर बन जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि बिल्डिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। अभी ये भी कहा गया है 2050 तक, अभी तक 40% इंडस्ट्री बनी है और बिल्डिंग बनी है, 60% और बननी है। अगर हम बिल्डिंग को सस्टेनेबल नहीं बनाएंगे, आई थिंक वी आर हेडिंग फॉर ए क्राइसिस एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और बिल्डिंग जो है दे कैन कंट्रीब्यूट टू द ह्यूमन हेल्थ, टू द एनवायरनमेंट, ये मैंने कहा। और मैं ये अभी रिक्वेस्ट करूँगा एनपीसी से, दे शुड कम आउट विद, यू नो, जितना नॉलेज है जो इन्होंने कहा हमारा वैदिक कल्चर में, और जो कॉन्टेक्स्ट बताया, ना हमने कभी किताब में पढ़ा, ना पढ़ाया गया, और ना हमारे टीचर्स को पता है, वो नहीं पढ़ा सकते। लेकिन ये चीज़ें एम्बेडेड होनी चाहिए। आई थिंक एनपीसी शुड नाउ कम आउट विद सम मटेरियल विच टॉक्स ऑफ डूज एंड डोंट्स एंड विच, यू नो, हाउ टू मेक बिल्डिंग हेल्दी। लास्ट में कंक्लूड करूँगा कि बिल्डिंग की टाइपोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। अभी नेक्स्ट बिल्डिंग है अल्टीमा टावर, अभी डिज़ाइन हो गया है। अल्टीमा टावर इज़ 2 माइल हाई टावर, 500 मंजिल उस टावर की है। बिल्डिंग डिज़ाइंड है, बिल्डिंग सारी स्ट्रक्चर हो चुकी है बट कंस्ट्रक्ट नहीं हुई। वो 10 लाख आदमी एक बिल्डिंग में रह सकते हैं। योर लुधियाना कैन बी accommodated in 2 kind of building. That is the future building and that's known as Ultima Tower, 2 mile high tower. And second challenge is there are not going to be skyscraper, they are going to be earth scraper, you know, क्योंकि ऊपर तो ज़मीन ख़त्म हो रही है। तो now you are going down, you know, and now there is in Mexico they are constructing a building 300 meter down, 65 story, you know, and they are trying to make it a green, making use of the earth, you know, all resources, heat, everything, and sunlight. But I think I'm sorry I've taken more of your time, but I would like to say construction industry is always evolving, devolving, never static, never finite. So you cannot fix the parameter. जो कही गई वो प्रिंसिपल हमारे पास हैं, हमारे, you know, they are known one, and principle is you work with nature, और नेचर में सन, स्पेस, ग्रीनरी 3 चीज़ें हैं। अगर आप इनको लेके या बिल्डिंग बनाएंगे या सिटी बनाएंगे, आप, you may not have a best design,
but we will never have a wrong design. Thank you. Thank you, sir. So another way to understand the role of history is to recognize the arc is a much tradition as a discipline. A tradition of living tradition that is not something static. At each stage, it implies transmission, but also a series of reinterpretations as well as abundance, the price to pay for innovations. As you already said, sir, the climatic responsive architecture is very important nowadays. पुरानी बात करें तो जैसलमेर में पटवाओं की हवेली होती थी. What they made very महीन जालियाँ so that they can trap the heat. So same ब्रिटिश आए, उनको क्लाइमेटिक रिस्पॉन्सिव इतना समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्लाइमेट से छेड़छाड़ नहीं की. व्हाट दे मेड, थिक वॉल्स, हाई सीलिंग्स. सो आने वाले टाइम के अंदर आई वुड रिक्वेस्ट इस कंक्लूजन के साथ कि हम भी क्लाइमेट को ध्यान रखते हुए क्लाइमेटिक रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर के साथ काम करें. एंड सर, आपने जैसे बोला कि एनपीसी के साथ कुछ करके आए, हमारे पूरी टीम बहुत पैशनेट है ऑलवेज काम करने के लिए. नाउ विद द गाइडिंग फोर्स लाइक यू विल डेफिनेटली डू समथिंग. थैंक यू सर, थैंक्स ऑल द पैनलिस्ट.